Good morning, everyone. Okay, so let's start the session. This is your ratio class 2. So let's start with basic questions. पहले कुछ लास्ट क्लास का रिकॉल हो जाए, फिर अपन नेक्स्ट पर मूव करेंगे. So tell me everyone, what is ratio? The part My of total. beta, Part of total. part out of total. Exactly, very good. चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर अपन मूव करेंगे नेक्स्ट क्लास के कंसेप्ट पर, क्वेश्चंस पर. So A and B, B and C ratio given, ABC ratio is required. Easy question. Sir, 8:12:15. Yes, 2 is to 3, 4 is to 5. It means this one is 12, 8 and 15. So the correct answer is 8 is to 12 is to 15. Okay. Now try to solve this one. Yes, guys, answer for this one. Ashwi, Manjeet, 10:12:15. 10, 12 and 15. So Manjeet, your answer is? Just a second, sir. So minus same, 10⁻12:15. Ashwi, क्या बोल रही हैं आप? Option B. Option number B. 10, 12 and 15. Yes, sir. B. Okay. So actually 30% of 8 means 3 by 10 of A. 0.25 it means obviously 1 by 4 of B. That is equal to what? 1 by 5 of C. So with the help of this आप A and B easily judge कर सकते थे, and with the help of this B and C judge कर सकते थे.
सो क्या रिजल्ट आता है ए एंड बी के रिस्पेक्ट में जब आप बात करते हैं? सो ये हो गया 10/4 एंड ऑब्वियसली अपॉन में आया 3. ओके, सो दिस इज 5. इट मीन्स 5 and 6. एंड फॉर बी एंड सी तो क्लियरली 4:5 है. 5, 6 and 4, 5. It means this is 24, 20 and 30, or you can say 10, 12 or 15. Yes, the correct is option number B. Now, sum of two numbers is this. Ratio is 5:3. Find both numbers. तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मेंटली कर सकते हैं. मीन्स 8 रेशियो वैल्यू इज 1664. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 रेशियो and 3 रेशियो? So here 8 ratio value is 1664. It means 1 ratio value is 208. So it means 5 ratio value is 208 into 5, and 3 ratio value is 208 into 3. So this is 1040 and this one is 624. Everyone got same? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now try to solve this one. Well, Answer for this one is 12. 12. Manjeet, your answer? same 12. Same 12. Rishika? So 12. Okay, so everyone got 12. I think ये क्वेश्चन तो सेम था. हाँ, ये भी सेम ही था. Yes, tell me the answer for this question within 30 seconds. So 285. Correct answer for this question is 285. Yes, Manjeet? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Rishika, Manjeet, any problem? No, sir.
So 25% more than B, it means ratio is 5:4, and 25% less than C, it means your ratio is 3:4. Easily ये ratio club हो जाएगा. 4, 3, 12, 5 3s are 15, and 4 4s are 16. And after getting this ratio, total amount is given. Easily आप calculate कर सकते हैं. Correct one is 285. Rishika, got it? Yes, sir. ये क्वेश्चन भी एज इट इज सेम था. आई थिंक अपन एजेस वाले क्वेश्चन कवर कर चुके थे इन द लास्ट क्लास. यस और नो? Yes, sir. हम्म. यस बेटा, अभी इस क्वेश्चन को एक बार अगेन ट्राई करके बताइए. सलोनी बेटा, आँख खुल गई? यस सर, लेट हो गया था थोड़ा। हालांकि अभी तक अपन ने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया है. आई थिंक यही लास्ट क्वेश्चन था इन द लास्ट क्लास. तो अभी तक हम लोग केवल रिकॉल करके चल रहे हैं लास्ट सेशन को. मंजीत, ये क्वेश्चन डिस्कस हो गया था ना? शायद हो गया था ये वाला भी. याद हाँ. नहीं है. याद नहीं आ रहा बेटा, इतनी मेमोरी कमजोर है तुम्हारी. चलिए स्पीडली सॉल्व करिए. So 1:5. 1:5 और 5:1? 5-1. 5:1. 5:1. Correct answer is 5:1. Discussion required for this question? Yes, Saloni? No, sir. No, sir. Okay. चलिए. Now ये है fresh question. So actually this is the first question of this class. Two vessels contain milk and water in the ratio 7:5 and 7:9 respectively. If both are mixed in the ratio 1:1, 1:1 meaning is equal quantity. Find the ratio of milk and water in new mixture. So try to solve this question with yourself. देखते हैं कितने बच्चे इस पर करेक्ट होते हैं. 1:1 में मिलाना है, इक्वल मिक्स करना है, एंड रिजल्टेंट में मिल्क एंड वाटर का रेशियो रिक्वायर्ड. Yes, guys, your answers.
So 49:47. Okay, Rishika got 49:47. Ashwi, Manjeet, Same. Saloni, you. 49:47. Yes, sir. So everyone got same? Saloni, your answer? Sir, 109 is to 100. ये तो थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का आंसर दिखाई पड़ रहा है, चलिए देखते हैं. Actually, two different containers containing milk and water in ratio 7:5 and 7:9. पहले तो बेसिक वे समझ लेते हैं. अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1:1 में मिलाया, इट मीन्स इक्वल क्वांटिटी मिलाया. इक्वल का केस है, इट मीन्स आप दोनों की वैल्यू को 1 लीटर कंसीडर कर सकते हैं. ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि 1 लीटर लेंगे आप, 10 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, बट दोनों को इक्वल कंसीडर करेंगे, रिजल्ट इजिली मिल जाएगा. सो मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट क्या हुआ, आउट ऑफ दिस 1 लीटर अकॉर्डिंग टू रेशियो मिल्क वैल्यू इज 7/12. 7/12, and in the second container out of 1 liter this is 7/16. 9 plus 7 it is 16, and for the second one again 1 liter के respect में 5/12 and 1 liter के respect में 9/16. just add these two values और इसे simplify करना है. so finally ये आपको result देता है 49:47. everyone got same? Yes, sir. Yes, sir. सलोनी क्लियर हो रहा है? Yes, sir. हाँ, अदरवाइज अगर मैं थोड़ा शॉर्ट अप्रोच पर चलूं, देखिए यहाँ पर चूंकि फ्रैक्शन का कैलकुलेशन आया, सो थोड़ा टाइम इन्वॉल्व हुआ इन द कैलकुलेशन. अकॉर्डिंग टू रेशियो 7+5 12 यूनिट्स हो रही है, 7+9 टोटल 16 यूनिट्स हो रही है. बट क्वेश्चन कहता है मिक्स करना इन द रेशियो 1:1. इट मीन्स इक्वल इक्वल क्वांटिटी. हाउ टू मेक इट इक्वल? आपको एलसीएम लेना होगा फॉर बोथ द वैल्यूज. LCM of 12 and 16 which is equal to 48. So how to make it 48? Multiply by 4 and multiply by 3. And to maintain the ratio, multiply by 4 and 4 and multiply by 3 and 3. And just add these two values, get same answer. 7 4s are 28, 7 3s are 21. Result is 49. 20 plus 27, result is 47. So this is your correct answer. I think clear everyone? Yes, sir. Any doubt? No, sir. तुम लोगों के पिच में कुछ बात नहीं आ रहा है, क्या बात है? एकदम क्या अभी नींद से जग नहीं पा रहे हो? ठंड बहुत ज्यादा है. चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. एज इट इज सेम पैटर्न का क्वेश्चन. नाउ योर क्वेश्चन इज, अगेन देयर आर 3 कंटेनर्स and capacity of each container is 10 liter, containing milk and water in the ratio 2:1, 3:1 and 3:2. So there are 3 containers. Capacity of each container is 10 liter, containing milk and water in the ratio 2:1, 3:1 and 3:2. अब इन तीनों को मिक्स किया एक लार्ज कंटेनर में. So what is the ratio of milk and water in the resultant mixture? As it is same pattern का question है, so do it fast.
So anyone got the answer? So 121:59. Exactly, very good. Manjeet, Ashvi, Yes, sir. Saloni. Yes, sir. I got the same. 121 is to 59. Exactly. So milk and water in the final solution, ratio is 2:1, 3:1, and 3:2. It means total units 3, 4, and 5. Question says सबका कैपेसिटी 10 लीटर है, इट मीन्स इक्वल क्वांटिटी है। तो अगेन इन इनडायरेक्ट वे उसने यही कहा कि मिक्स ऑल द containers in the ratio 1:1:1. Okay, so how to make it equal? 3, 4, and 5, your LCM value is 60. LCM is 60, so how to make it 60? Multiply 20, multiply 15, multiply 12. To maintain this ratio, also multiply by 20 and 20, 15 and 15, 12 and 12, and after adding these two values, your result is 1:1:59. So this is your final answer. I think clear, everyone? Saloni got it? Yes. Yes, sir. Now try to solve this next one. अब important है in this question, if both are mixed in the ratio 5:2, अभी equal नहीं है, particular ratio given है 5:2. So through basic approach तो आप easily solve कर सकते हैं. So if any problem to solve in shortcut way, so try to solve in basic approach. Yes, do it fast. कल का आप लोगों ने अरुण सर का क्लास अटेंड किया था? Yes, sir. कौन सा टॉपिक कवर किया था? सर उनकी कोई वेबसाइट थी उसके बारे में बता रहे थे वो। अच्छा, yes, आंसर फॉर दिस वन इज बेसिक अप्रोच से तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। 805 is to 182. क्या बेटा 800? 5 is to 182. तो कुछ तुमने बहुत खतरनाक सा आंसर बताया मेरे को, ऐसा तो नहीं है। यस मंजीत, ऋषिका, सलोनी। 70:56.
70/56 एक्चुअली करेक्ट तो है, बट आपको 14 का टेबल नहीं आता। 5:4. 5:4. So correct answer for this question is 5:4. तो डिस्कस करें, अगर एनी प्रॉब्लम फील कर रहे हैं आप। सलोनी, मंजीत, Yes, sir. एक बार डिस्कस करो. चलिए। So come to the basic approach initially. According to basic approach, in this question, ratio is given 4:5 and 5:1. Both are mixed in the ratio 5:2. 5:2, it means आप consider कर सकते हैं कि like this first total quantity is 5 liter and second total quantity is 2 liter. जो रेशियो दिया उसको मेंटेन करते हुए आप कोई भी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। आप इवन 10:4 भी कंसीडर कर सकते हैं, 10 लीटर 4 लीटर, तब भी रेशियो आपका 5:2 रहेगा। सो नाउ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट, out of 5 liter this is 4 out of 9, and out of 2 liter in the second one 5 out of 6। इन दोनों को प्लस किया, रेशियो चाहिए वाटर से, सो आउट ऑफ 5 लीटर फ्रॉम द फर्स्ट कंटेनर इट इज 5 out of 9, and from second container out of 2 liter this is 1 out of 6। just club these two values and get your answer। अभी चेक करिए सेम आंसर मिलता है या नहीं। यस गाइस, मंजीत गॉट इट। Yes, sir. तो अगर आपका कैलकुलेशन ठीक है, सो योर करेक्ट आंसर इज 5:4। अदरवाइज इन बेसिक अप्रोच, अब ध्यान से समझिएगा, here total values of milk and water is 4 and 5, it means 9 unit, and 5 plus 1 it means 6 unit। सो अभी रिसेंटली अपन ने डील किया था 1:1 में कैसे मेंटेन करते हैं। अब अगर कोई पर्टिकुलर रेशियो इज टू बी गिवन है, सो बिफोर मेंटेनिंग दिस रेशियो आपको इनिशियली पहले से 1:1 करना है, और वो कैसे करना है आप जानते हैं, और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर A:B करने के लिए। सो 1:1 के लिए 9 and 6, योर LCM is 18। हाउ टू मेक इट 18, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अभी देखिए ये दोनों वैल्यूज 18 और 18 में कन्वर्ट हो गए, इट मींस एक्चुअली अब ये 1:1 का रेशियो मेंटेन हो रहा है। एंड आफ्टर मेंटेनिंग दिस रेशियो 1:1, अब जो पर्टिकुलर रेशियो रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिस इज 5:2, सो मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। सो 9 तो ये ऑलरेडी है, अभी एक्स्ट्रा पार्ट आपके पास आ रहा है, 5 2 are 10, सो मल्टीप्लाई 10 एंड मल्टीप्लाई 10। And 6 ये already है, extra values 3 2 just 6, so multiply 6 and multiply 6। Add these two values 40 and 30, it means 70, 50 plus 6 it means 56, and your ratio is 5:4। Clear everyone? Yes, sir. Manjeet, Yes, sir. Rishika, Saloni, got it? Yes, sir. तो अब आप दोनों पैटर्न में इजीली डील कर सकते हैं, इधर इन द फॉर्म ऑफ 1:1 और इन द फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर रेशियो इज टू बी। So now this is your next question. 2 minutes sufficient to solve this one.
So 17 is to 43. 17:43, okay. And rest, Manjeet, Rishika, Saloni. बेटा इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है इस क्वेश्चन में? एज इट इज सेम क्वेश्चन तो है जैसे लास्ट डिस्कस किया था, बस इसमें रेशियो आपको सारा लैंग्वेज में दिया है। लैंग्वेज को इंटरप्रेट करके आपको रेशियो में कन्वर्ट करना था, दैट्स इट ओनली। इसके अलावा और कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं था। Yes, sir. 17 is to 43. हम्म। आप सभी दिल्ली से बिलोंग करते हैं? No, sir. फिर कहाँ से? Patna. पटना, ओके। बाकी लोग? So Punjab, Bathinda. पंजाब। पंजाब में तो बहुत ठंड पड़ रहा होगा। Yes, sir. नहीं, अभी तो दिल्ली में भी बहुत ठंड है। यस, मंजीत। पुणे। पुणे। पुणे में मौसम कैसा है? बहुत अच्छा है। यहाँ पे तो गर्मी है बहुत ज्यादा। गर्मी है ना? हाँ, मैं अभी खुद ही एमपी में था अभी कुछ टाइम पहले। तो मेरे को तो एक शर्ट में ही काम चल रहा था, दिल्ली आ गया, परेशान हो गया। सर बाकी बिहार में भी बहुत ठंड है। बिहार में भी ठंड है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। देखिए क्वेश्चन कितना इजी था। 2 kg ऑफ मेटल is mixed with 3 kg of metal. So actually आपको जो इनडायरेक्ट वे में फर्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है कि आपको मेंटेन करना है रेशियो 2:3 का। इस रेशियो में मिक्स करना है, मेंटेन नहीं करना है, इस रेशियो में मिक्स करना है। And out of this 2 kg metal, 1/3 is zinc. So obviously 1/3 is zinc. So rest 2/3 is copper. It means zinc and copper का रेशियो हो गया 1:2 in the first metal. डायरेक्टली आप कह सकते थे। एंड फॉर सेकेंड मेटल जिसका टोटल वेट है 3 kg, 1/4 इज जिंक। सो 1/4 इज जिंक, इट मींस आउट ऑफ 4 टोटल पार्ट्स 1 पार्ट जिंक का है। सो रेस्ट 3 पार्ट कॉपर का होगा। इट मींस योर रेशियो इज 1:3। ये तो डायरेक्टली कंसीडर कर सकते थे आप। नाउ टोटल यूनिट्स इज 3, टोटल यूनिट्स इज 4। अब इनिशियली आपको जब 2:3 का रेशियो मेंटेन करना है, बिफोर दिस आपको 1:1 मेंटेन करना है। एंड हाउ टू मेक इट इक्वल? LCM of 3 and 4 is 12, so multiply by 4 and multiply by 3. Now दोनों इक्वल हो गए। अभी जो नीडेड है कौन सा? 2:3, उससे और मल्टीप्लाई कर दिया। So extra part is 8, so multiply 8 and 8, and extra part is 9, so multiply 9 and 9. So 8 plus 9, 17, and 16 plus 27 is 43. So your correct answer is 43. 17:43। क्लियर? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, केवल लैंग्वेज में आपको सारी इंफॉर्मेशन गिवन थी। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। Now your next question is this. Ratio of income of A, B, and C is 3:7:4, and the ratio of their expenses are 4:3:5. If A saved rupee 300 out of his income of 2,400, find their savings.
Yes, guys, answer. The 4025 and 575. Yes. तो बहुत इजी क्वेश्चन था यार ये. Yes, Manjeet, any problem? नो सर। सेम आंसर आया. आंसर सुना नहीं, क्या आया था? अरे तुम त्योहार सलोनी छोड़ दो, तुम बताओ तुम्हारा. क्या था, एक सेकंड को। सर 575। 575 तो सी का था ना. 12:161:23। ये तुम लोग रेशियो क्या निकल बता रहे लिया। हो यार, रेशियो चाहिए नहीं था, सेविंग्स चाहिए थी. थ्री बताओ यार, हंड्रेड इज पुणे में टू फोर मौसम जीरो इतना टू बढ़िया है, फाइव तेरा इज टू दिमाग फाइव नहीं सेवन काम कर फाइव रहा, क्या बात है? हम्म? मौसम का कुछ तो बेनिफिट उठाओ. यहाँ तो लोग ठंड में परेशान है सब जगह. यहाँ पे बहुत ज्यादा ही गर्मी है ना सर, इसलिए। अरे गर्मी नहीं है, इतनी गर्मी नहीं है. नहीं सर, बहुत है सच में। बहुत है. थ्री चलिए. हंड्रेड और 424025 575। हाँ अभी ठीक है, देखिए. सो इनकम रेशियो इज गिवन, दिस इज 3, 7 एंड 4. एक्सपेंसेस रेशियो इज 4, 3 एंड 5. आपको सेविंग्स का वैल्यू चाहिए था. एंड स्टेटमेंट सेज कि ए सेव्स ₹300 out of his income of 2400. So obviously this 3 ratio value is 2400. So obviously income का 1 ratio 800 में convert हो गया, and 7 ratio का value हो गया 5600, and 4 ratio is equal to 3200. And 4 ये वैल्यू है एक्सपेंस के रिस्पेक्ट में फॉर ए. एंड 2400 में से 300 सेव किया, इट मीन्स इस 4 रेशियो का वैल्यू हुआ 2100. ओके. सो एक्सपेंस के 1 रेशियो की वैल्यू 2100 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 525. So if 1 ratio value of expense is 525, so 3 ratio value is 3 times of this, it means 1575, and 5 ratio value is 2625. अभी आपके पास इनकम भी है और एक्सपेंस भी है. जस्ट सब्ट्रैक्ट दीज टू वैल्यूज एंड गेट योर आंसर फॉर सेविंग्स. ये तो डायरेक्टली गिवन था, दिस इज 300. फॉर बी दिस इज 4025 एंड 575. क्लियर एवरीवन? यस सर। हम्म. यस, तो मंजीत बताइए मेरे को, अगर मैं एज इट इज सेम क्वेश्चन अगर आपको नेक्स्ट देता हूं तो कितना टाइम लगेगा उसे सॉल्व करने में? 1 मिनट। 1 मिनट. मैंने आपको 2 मिनट दिया. ठीक है, चलिए. केवल माइनर सा चेंज किया है. नाउ अगेन देखिए, रेशियो इनकम का 374 सेम है, एक्सपेंस का रेशियो 435 सेम है. लास्ट क्वेश्चन में आपको बोला था ए सेव्स ₹300 आउट ऑफ हिज इनकम ऑफ 2400, बट दिस टाइम लैंग्वेज में कह रहा है ए सेव्स 14.28% ऑफ हिज इनकम. सो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स. तो आपने 1 मिनट मांगा, मैंने 2 मिनट दिया है. योर टाइम स्टार्ट नाउ. यस.
Anyone got the answer? Ashvi, Rishika, Saloni? 55 is to 646. अब बेटा थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ अपना। 55 is to 646 is to 100. नहीं बेटा, ये तो तुमने पोस्टमार्टम कर दिया इसका। यस, मंजीत कैसा फील कर रहे हैं? 1 मिनट और हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है। ऋषिका एंड सलोनी? सर 1 मिनट। सिक्सटी इज टू 714 इज टू 111। ओके, एंड ऋषिका, योर आंसर? सर नहीं हुआ। नहीं। तो आई थिंक फिर डिस्कशन किया जाए। यस सर। देखिए, सेम क्वेश्चन था, उसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज हुआ और हालात गंभीर हो गए। चलिए, सो अगेन डिस्कस करते हैं इसको। ए, बी, सी। इनकम का वैल्यू रेशियो में गिवन है, दिस इज 3, 7 एंड 4। और एक्सपेंसेस का वैल्यू 4, 3 एंड 5। सो देखिए, दो डिफरेंट वेज हैं। पहले तो आप इसको एक्स वाई से कंसीडर करके चले, तब भी सॉल्व हो जाएगा और इजीली हो जाएगा। फिर विदाउट एक्स वाई चलेंगे। सो लाइक आप इनकम की वैल्यू को 3x, 7x, 4x और एक्सपेंस की वैल्यू को 4y, 3y एंड 5y कंसीडर करते हैं। सो इन दिस सिचुएशन योर सेविंग इज इक्वल टू 3x minus 4y for A, 7x minus 3y for B and 4x minus 5y for C। यहां तक तो क्लियर है? यस सर। नाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या हुआ बेटा? सॉरी।
यस, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। मैं चार्जर लगाना भूल गया तो सीधा स्विच ऑफ हो गया वो। चलिए खैर, नाउ आपको एक्स एंड वाई का नीड है। इसके लिए आपको ये स्टेटमेंट गिवन है, ए सेव्स 14.28%। यस सलोनी, 14.28% इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन इज? Am I audible? 1/7. Yes, 1/7. So 1/7 का मीनिंग क्या हुआ? आउट ऑफ 7 रुपी 1 रुपी सेव हो रहे हैं। इट मीन 7 रुपीज इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 रुपी सेविंग को। यस और नो? Yes, sir. इट मीन्स इनकम एंड एक्सपेंस रेशियो इज 7:6। भाई आउट ऑफ 7 रुपीज 1 रुपी सेव हुए, सो 6 रुपीज एक्सपेंडिचर हुआ ना। सो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो 7:6 होना चाहिए। पॉइंट इज क्लियर? Yes, sir. यस सर। और ये सारी स्टोरी विद रिस्पेक्ट टू ए हो रही है, और ए का इनकम का वैल्यू है 3x, एक्सपेंस का वैल्यू है 4y, विच मस्ट बी इन रेशियो 7:6। सो इजीली आप x और y का रिलेशन निकाल पाएंगे। So this is 7:4 and 6:3. It means 2 2s are 2 3s are. Finally, this one is 14:9. Now you can take x as a 14 and y as a 9. Is it clear, everyone? Yes, sir. So अब आपको 14 और 9 का टेबल आना चाहिए। 14 3s are 42, 9 4s are 36, 14 7s are 98, 9 3s are 27, and 14 4s are 56, 9 5s are 45. So your correct answer is 6:71:11. This is your correct answer for savings of A, B, and C. Clear, everyone? यस सर। Manjeet, got it? Yes, sir. चलिए अभी मैं आपको दूसरा अप्रोच भी क्लियर कर देता हूँ, लाइक विदाउट एक्स एंड वाई। तो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था, अपन ऑलरेडी वो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, बट उसको यहाँ पर यूज करना था। इनकम वैल्यू इज व्हाट? दिस इज 3 7 and 4. Expense ratio is 4 3 and 5, and it is necessary to maintain the ratio of income and expense for A is 7:6, जो अपन ने अभी डिस्कस किया। So how to maintain the particular ratio? ये केवल A के रिस्पेक्ट में करना है। सो इनिशियली आपको इस रेशियो को मेंटेन करने से पहले 1:1 मेंटेन करना है। हाउ टू मेक इट 1:1? जस्ट मल्टीप्लाई बाय 4 हियर एंड मल्टीप्लाई बाय 3 हियर। और सारे रेशियो को मेंटेन करने के लिए फिर सब में 4 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनकम में और एक्सपेंसेस में 3 एंड 3 से। अभी तो ये ए और बी, सॉरी ए का इनकम और एक्सपेंस का रेशियो 1:1 हो गया, बट मेंटेन करना है 7:6 में। सो मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 multiply 7 multiply 6 multiply 7 and multiply 6, and just subtract these two values to get the ratio of their savings। और फाइनली मे भी जरूरी नहीं डायरेक्टली आपको 671 और 11 मिल जाए, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में क्रिएट करेंगे, देन फाइनली यू गेट 6:71:11। अगेन वही प्रोसीजर है जो पहले भी 2 या 3 क्वेश्चंस में सॉल्व कर चुके हैं। आई थिंक नाउ क्लियर एवरीवन, both the approaches?
Yes, sir. Anyone having any doubt? Manjeet? नो सर, नो डाउट। Okay. So फिर move करें next question पर. Now your next question language says the price of a diamond is proportional to a square of its weight. The diamond broke down in 4 pieces in such a manner that their weight are in the ratio 1 to 3, 4. If the broken diamond gives loss of rupee 1,40,000, then what was original price of diamond? Just follow the language of this question and get your answer easily. This guy's language इसका digest हो गया. Any problem? तो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन था. मंजीत डूएबल है बेटा ये. सलोनी. Yes. चलिए समझते हैं बेटा. लैंग्वेज अगर Sir, आपने option B. ऑप्शन बी यस एब्सोल्युटली राइट करेक्ट. देखिए प्राइस क्वेश्चन में गिवन है is directly proportional to the square of its weight. अब इस ब्रोक डाउन के बाद ये 4 पीसेस में ब्रेक हो गया और हर एक पीस का वेट 1 2 3 4 इस रेशियो में चल रहा है. तो अगर मैं इसी को एज इट इज वेट कंसीडर कर लेता हूँ कि लाइक 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम और 4 ग्राम ऐसा कंसीडर कर लीजिए. सो बिफोर ब्रोक डाउन टोटल वैल्यू बन रही थी 4 + 3 + 2 + 1 विच इज इक्वल टू 10 यूनिट्स. ओके.
एंड 10 यूनिट्स, तो प्राइस हो गया इसके स्क्वायर के रिस्पेक्ट में 100 यूनिट्स के इक्वल, है ना। एंड आफ्टर ब्रोक डाउन ये सबका प्राइस अलग अलग हो गया, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1 plus 4 plus 9 plus 16. So 16 plus 9, 25, 25 plus 5, 30. So initially जो price था, which is equal to 100 units according to ratio, and after broke down it is 30 units. So loss कितने का हुआ बेटा? 70 units का loss हुआ, और ये 70 यूनिट आपको 1,40,000 के रिस्पेक्ट में गिवन है। 70 यूनिट्स का वैल्यू है 1,40,000। सो क्लियरली आप कह सकते हैं ओरिजिनल प्राइस ऑफ डायमंड, इट मींस 100 रेशियो का वैल्यू डेफिनेटली ये 2 lakhs हो जाएगा। इट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. मंजीत एंड सलोनी, यस सर। Yes. ट्राई टू सॉल्व दिस वन। इजी क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। इनकम का रेशियो फॉर ए एंड बी 1 year ago was 1 year ago was 3:2, and the ratio of income of A and B last year to present year is this and this. Total present आपको given है 21,500. So income of B is required to break this total value 21,500, which is the total present income. आपको प्रेजेंट का एक्चुअली रेशियो चाहिए। रेशियो आपको बहुत से गिवन है, केवल प्रेजेंट का रेशियो नहीं गिवन है, वही कैलकुलेट करना है। सो योर प्राइमरी गोल इज टू कलेक्ट primary goal is to calculate the ratio for A and B with respect to present income. Clear beta? And how to calculate this, ये important काम है आपका। Yes guys, any problem?
यस मंजीत, ट्राई कर रहा हूँ। चलिए छोड़िए। अभी मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पहले मेरे उसका आंसर बताइए, फिर मैं इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो वो क्वेश्चन करिए जो इजीली डूएबल है आपके लिए। मैंने आपसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा कि 2 पेन कॉस्ट इज 3 रुपीज। सो 3 पेन का कॉस्ट क्या होगा? और अदर वन इज 3 पेन कॉस्ट इज 4 रुपीज। सो व्हाट इज द कॉस्ट फॉर 2 पेन्स? एटलीस्ट ये क्वेश्चंस तो इजीली डूएबल है। यस, स्पीडली आंसर करें। बेटा इसमें भी टाइम कंज्यूम होगा। सर 4.5 and 2.66. ओके, सो अब इसे फ्रैक्शन में कह सकते हैं। दिस इज 9/2 एंड दिस वन इज 8/3। यस और नो? Yes, sir. एवरीवन गॉट सेम? यस सर। Yes, sir. सो एज इट इज ये क्वेश्चन है, बट आपको इस क्वेश्चन में मे बी लैंग्वेज डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आ रहा, तो आप ध्यान से समझिएगा। फॉर ए एंड बी 1 year ago ratio was 3:2, and for last year to present year for A and B ratio is given 2:3 and 3:4। सो क्या मीनिंग हुआ इसका कि अगर मैं ऐसे डील कर रहा हूं इस तरह से कि लास्ट ईयर ए का इनकम 2 रुपीज था, सो प्रेजेंट ईयर में 3 रुपीज हो गया। बट एक्चुअली ये जब 2 रुपीज था तब 3 हो गया, 2 था नहीं, कितना था एक्चुअली? 3 रुपीज था। सो अगर 2 से 3 हो रहा है, सो 3 के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? एज इट इज यही क्वेश्चन हो रहा है, तो दिस इज 9/2। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? Yes, sir. एंड सेम फॉर बी। अगर बी का इनकम लास्ट ईयर 3 रुपीज है, सो इन प्रेजेंट ईयर इट विल 4 रुपीज। बट 3 नहीं था, कितना था? 2 था। सो 3 के रिस्पेक्ट में 4 हो रहा है, सो 2 के रिस्पेक्ट में कितना होगा? एज इट इज ये भी आ गया 8/3। नाउ आपके पास ए और बी दोनों का प्रेजेंट का रेशियो मिल गया, विच इज 9/2 एंड 8/3। So initially इसे simplify करेंगे by multiply 6, because 6 is the LCM of both denominator values. So this is 27 and 16. So this is the ratio between A and B for their respective income. And total value is given 21,500. B's value is required. So B का value हो गया 16. Out of total 27 plus 16, which is equal to 43. And multiply 21,500. 43 5s are 215. So 16 into 500. It means correct answer is 8,000. Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। So बहुत easy questions हैं, but केवल language थोड़ा different way में बोल देते हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अच्छा, अदरवाइज देखिए एक चीज और है कि जैसे कि मैंने सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा कि 2 पेन्स कॉस्ट इज 3 रुपीज। अभी मैंने आपसे कहा कि 4 पेन कॉस्ट कितना होगा, तो आप इजीली कह सकते हैं 6 रुपीज, क्योंकि क्वांटिटी डबल हुआ तो प्राइस भी डबल हो जाएगा। इट मीन्स अगर ये वैल्यू मल्टीपल में होंगी तो इजीली आप रिजल्ट निकाल सकते हैं रेशियो का, ये फ्रैक्शन वैल्यूज नहीं आएंगी। तो एक अदर वे और देखते हैं कि जिसमें अपने को ये फ्रैक्शन डील नहीं करना पड़े, उसको भी जरा ध्यान से समझिएगा। उससे डायरेक्टली आपको ये रिजल्ट 27:16
मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो ध्यान से समझिए। मल्टीपल में क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने का मीनिंग है कि जो लास्ट ईयर से कंपेयर किया गया है इसका वैल्यूज 2 और 3 है। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। सो इस लास्ट ईयर की वैल्यू में आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो नाउ इट इज 18 एंड 12। देखिए रेशियो अभी भी मेंटेन है, अभी भी 3:2 है, बट अब आपका वर्क डायरेक्टली हो जाएगा जिसमें आपको फ्रैक्शन की कोई डीलिंग नहीं करनी पड़ेगी। लास्ट ईयर की वैल्यू 2 और उसके रिस्पेक्ट में ये 3 हो रहा है, बट एक्चुअली 2 नहीं था, 18 था। सो 2 से 18 इट मीन्स 9 टाइम्स था। सो ऑब्वियसली इसको भी 9 टाइम्स करेंगे विच इज इक्वल टू 27। 3 के रिस्पेक्ट में 4 हो रहा है, बट एक्चुअली 3 नहीं है, 12 है। एंड 3 से 12 इट मीन्स 4 टाइम्स, तो इसको भी 4 टाइम्स करेंगे विच इज इक्वल टू 16। सो देखिए डायरेक्टली आपको वही वैल्यू मिल गई रेशियो में। क्लियर? यस Yes, सर। sir. Now, next question as it is same as, so do it fast. Yes, guys, answer बेटा अभी भी नहीं आया? Sir, 1800 and 2500. Yes, exactly. Correct answer is 1800 and 2500. Any problem to solve this? No, sir. Everyone got same? Yes. Yes, sir. Manjeet, यस सर। डिस्कस करें? Saloni got it? Yes, sir. चलिए अगर सबका आ गया तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगेन एज इट इज सेम क्वेश्चन, बट देखिए अब इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। एक्चुअली ए बी सी का 3:4:5 रेशियो गिवन है फॉर लास्ट ईयर, इट मीन्स 1 ईयर एगो। एज इट इज सेम लैंग्वेज है, इस बार 3 पर्सन इन्वॉल्व हो गए। स्टोरी अभी भी सेम रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं। सो ट्राई करिए इसको।
So anyone got it? 40,000. Sir, 40,000. 40,000, very good. मंजीत तुम्हारे आंसर्स बहुत स्लो यस आ रहे सर हैं। 40,000। 40,000, यस। अभी भी किसी एक का रिस्पॉन्स नहीं आया, आई थिंक सलोनी का। यस सलोनी। सलोनी में एनी प्रॉब्लम? देखिए मैं डिस्कस कर देता हूँ। A, B, C, your ratio is 3, 4 and 5 for last year. And last year to present year, A, B and C ratio is given 4:5, 2:3 and 3:4. So अगर आपको मल्टीपल में वैल्यूज क्रिएट करनी है, so इनिशियली आप 4, 2 and 3 LCM value is 12, so multiply by 12 in all the values. So now you get what? 36, 48 and 60. So देखिए 4 के रिस्पेक्ट में 5 हो रहा है, बट एक्चुअली लास्ट ईयर की वैल्यू 36 है। सो 4 to 36 इट मीन्स 9 टाइम्स। सो 9 टाइम्स इसे भी किया, दिस वन इज 45। 2 से 3 में कन्वर्ट हो रहा है, बट 2 नहीं है एक्चुअली 48 है। सो 2 to 48 इट मीन्स 24 टाइम्स। 24 3s are 72। एंड 3 से 4 हो रहा है, बट एक्चुअली 3 नहीं है, एक्चुअली 60 है, इट मीन्स 20 टाइम्स। सो मल्टीप्लाई बाय 20. So it means this is 80. So your ratio is what? 45 is to 72 is to 80. And total is given in this question. This is 98,500. Income of C is required. So C's income is equal to 80 out of total. And total in this situation, 5 plus 2, 7. 7, 4, 12 plus 8. Yes, it is 197. And 98,500 पर आपको ये required है। 197 का एग्जैक्टली 5 टाइम्स होता है 985. सो अगेन 80 into 500 which is equal to 40,000. सलोनी नाउ क्लियर? है ही नहीं लग रहा क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज टोटल इनकम ऑफ A, B and C are 1,44,000. So total income given है। They spend 80%, 85% and 75% from their income. And the ratio of their savings are 8:9:20. Find the income of C. Again important point है कि आपको income required है, total income given है। To break this total income आपको income का ratio required है। So how to get the ratio of their income? Easily फिर result आ जाएगा, income of C या A, B कोई भी required है। Okay, so take your time. 2 minutes sufficient to solve this. Yes.
Yes, guys. रेशियो आया इनकम का? आशवी, मंजीत, ऋषिका। चलिए समझते हैं, ध्यान से समझिए। रेशियो गिवन है फॉर सेविंग्स एंड परसेंटेज वाइज आपको एक्सपेंडिचर गिवन है। सेविंग का रेशियो गिवन है, रिलेट कैसे करेंगे? बिकॉज ए 80% स्पेंड कर रहा है, इट मीन्स सेविंग का वैल्यू 20% है, एंड दैट 20% इज इक्वल टू 8 अकॉर्डिंग टू रेशियो। सेम फॉर बी, 85% स्पेंड कर रहा है, इट मीन्स सेविंग वैल्यू इज 15%, and this is equal to 9 according to ratio. And C 75% spend करता है, it means saving value is 25%, and which is equal to 20 according to ratio. So actually this is 5, this one is 3 by 20, and this is 1 by 4. So clearly your A value is 40, B is 60, and C is 80. So इसे और simplify कर सकते हैं. This is 2, 3, and 4. Now your income ratio is 2, 3, and 4. Income of C is required, which is 4 out of 9, and out of 1,44,000. Just solve this simple calculation and get your answer, which is equal to 64,000. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So next question पर move करें. Yes, sir. As it is same question है, केवल Yes, sir. डेटा चेंज किया है. So within 2 minutes आपका आंसर आना चाहिए. Income of B is required. So 480. Yes, sir. 480. A का 600, B का 480 और C का 4. Yes, sir. 480.
यस मंजीत, सर सेम। सही। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप रेशियो के फॉर्म में भी डील कर सकते थे। कैसे डील कर सकते थे भी, लास्ट में मैंने परसेंटेज और रेशियो को रिलेट करके डिस्कस किया क्वेश्चन। बट जैसा क्वेश्चन में गिवन है, दे सेव 20%, 25% and 40%. So 20% it means 1 by 5, 25% it means 1 by 4 and 40% it means 2 by 5. क्या मीनिंग है इसका? आउट ऑफ 5 रुपी इनकम 1 रुपी सेव कर रहा है। इट मीन्स एक्सपेंडिचर का वैल्यू हो गया फॉर ए 4 by 5, फॉर बी आउट ऑफ 4 रुपी 1 रुपी सेव कर रहा है। इट मीन्स 3 by 4, आउट ऑफ 4 3 रुपीज स्पेंड कर रहा है। एंड फॉर सी 2 by 5 सेव करता है, इट मीन्स 3 by 5 स्पेंड कर रहा है। सो अब देखिएगा 16, 12 एंड 9 ये आपको एक्सपेंडिचर का वैल्यू गिवन है। इट मीन्स 4 का वैल्यू 16 गिवन है। सो इफ 4 इज इक्वल टू 16 इट मीन्स 1 इज इक्वल टू 4, सो 5 इज इक्वल टू 20। ए का वैल्यू मिल गया इनकम का। अगेन इस 3 का वैल्यू 12 है, दिस 3 इज इक्वल टू 12, सो 1 इज इक्वल टू 4 एंड 4 इज इक्वल टू 16। ये बी का मिल गया। एंड 9 गिवन है सी के लिए, सो 3 इज इक्वल टू 9, इट मीन्स 1 इज इक्वल टू 3, सो 5 इज इक्वल टू 15। सो 20, 16 एंड 15 ये भी आ गया आपको रेशियो फॉर इनकम। एंड अभी बी का चाहिए था, तो 16 आउट ऑफ टोटल वैल्यू इज 51 एंड 1530, it means 30 times, so correct answer is 480. Clear everyone? यस। Yes, sir. Okay, अब लैंग्वेज वाइज थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो डू इट केयरफुली। यस, इजी है बट लैंग्वेज इंपॉर्टेंट। So now this question is in your test. Time limit is 3 minutes. Your time start now.
Yes, guys, time over. Answers? Sir, 5 hours 6 minutes. 5 hours 6 minutes. Okay. कैसे सॉल्व किया बेटा? सर पहले 7 आवर और 4 आवर्स को मल्टीप्लाई किया. हम्म, 28 minus 7x is equals to double of 28 minus 6x, 4x. तो बेटा एक बार कैलकुलेशन दोबारा चेक करो. Sir, Yes, 7 Ashmi, hours 30 minutes. 7 hours 30 minutes. 30 minutes. Okay. Manjeet, Saloni. मंजीत सॉल्व नहीं हुआ. नो सर. चलिए फिर डिस्कस करते हैं. देखिए, 2 candles of same height, सेम टाइम पर बर्न हुई. फर्स्ट कंज्यूम होती है 7 आवर्स में और सेकेंड कंज्यूम हो रही है 4 आवर्स में, और दोनों का बर्निंग रेट आपने सेम लिया. सो इन हाउ मेनी आवर्स आफ्टर बीइंग लाइटेड, फर्स्ट 4 times द हाइट ऑफ सेकेंड. इट मीन्स फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो 4 times, इट मीन्स 4:1 होना चाहिए. यस और नो? Yes, sir. जीत, देखिए, सेम हाइट को आप, चूंकि ये 7 आवर्स में बर्न हो रहा है और कंज्यूम हो रहा है और ये 4 आवर्स में, इट मीन्स टोटल हाइट आप दोनों की एज इट इज सेम लेकर कितनी ले लेंगे? 28 यूनिट. ये कंसीडर किया आपने टोटल हाइट. अब आपको तो टाइम कैलकुलेट करना है जिसमें फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो हाइट का 4:1 हो जाएगा. तो सपोज लेट द टाइम बी टी. ठीक है, आफ्टर टी आवर्स. सो चूंकि फर्स्ट वाला इन 7 आवर्स कंप्लीट 28 यूनिट कंज्यूम हो रहा है, इट मीन्स 1 आवर में 4 यूनिट कंज्यूम होता है, और सेकेंड वाला 1 आवर में 7 यूनिट कंज्यूम होता है. सो इन टी आवर्स ये 4 टी कंज्यूम होगा और ये टी आवर्स में 7 टी कंज्यूम होगा. सो आउट ऑफ 28 टोटल हाइट, फर्स्ट अगर कंज्यूम हो गया 4 टी और सेकेंड कंज्यूम हो गया 7 टी, इट मीन्स रिमेनिंग हाइट का जो रेशियो है दैट इज 4:1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है. चेक करिए बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या रिजल्ट आता है, स्पेशली आश्वी एंड ऋषिका. कि आप लोगों ने जो कैलकुलेट किया उसमें कुछ गड़बड़ है. अभी चेक करिए. Sir, 3 hour 5 minutes. हाँ, 3 hour 5 minute नहीं है, 3.5 आवर्स है. 3.5. बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिला आपको? 28 माइनस 4 टाइम्स ऑफ टी. 4 मल्टीप्लाई बाय दिस, सो 28 4 जा, दिस इज 112 माइनस 7 4 जा 28 टी. क्लियर? सो 28 को आप इधर ले गए, सो दिस इज इक्वल टू 24 टी, दैट इज इक्वल टू 112 एंड माइनस ऑफ 28. क्लियर है ना? सो यहां से आपको टी का वैल्यू क्या मिल रहा है? दिस इज 84. yes, 84/24, which is equal to 3.5 hours. Yes or no? Yes, sir. Clear everyone? यस सर. Yes, sir.
सो क्वेश्चन टफ नहीं था, केवल लैंग्वेज इंपॉर्टेंट था कि आपने इसको अगर सही से डील किया सो इजीली गेट योर आंसर। अदरवाइज यही अप्रोच अगर आप इसमें ये 28 कंसीडर नहीं करके सपोज कंप्लीट हाइट को h कंसीडर करते तो फिर ये कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता कि अगर आप कंप्लीट हाइट को h कंसीडर करते। सो इच h के रिस्पेक्ट में कितना कंज्यूम हुआ वो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और फाइनली फिर आपको रेशियो 4:1 रखना है। तो ऑलरेडी आपके पास ये एक h एक वेरिएबल आ गया। तो इसको भी हालांकि ये तो कैंसिल हो जाएगा। सो आउट ऑफ दिस h, जो कि इनिशियली ये बोला 7 आवर्स में h हाइट कंज्यूम हो रहा है, सो इट मीन्स 1 आवर में h/7 कंज्यूम होगा और इन t आवर्स में ये ht/7 कंज्यूम होगा और सेकेंड वाला ht/4 कंज्यूम होगा। तो देखिए h तो कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा। नाउ अब ये बनेगा 1 - t/7 एंड 1 - t/4 दैट इज इक्वल टू 4:1। अभी भी रिजल्ट आपका सेम आने वाला है बट थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका ज्यादा हो गया इन दिस सिचुएशन। यहां पर ये 28 कंसीडर करने पर ये कैलकुलेशन वॉइस थोड़ा इजी था। आई थिंक क्लियर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Again, next question is in your test. 2 minutes you have. Easy question है बट कैसे डील करते हैं ये इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन अगेन आप बेसिक अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं और अगर आपको शॉर्टकट अप्रोच समझ आती है तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। Yes, time up. Anyone got the answer? So 21 liter. 21 liter. Okay, good. देखिए सर थ्रू द बेसिक 21। अप्रोच। यस मंजीत। 21। ओके, कैसे सॉल्व किया? A and B are in the ratio 7:5. So suppose A का वैल्यू 7x and B का वैल्यू 5x। 9 लीटर रिप्लेस किया गया विद 9 लीटर ऑफ मिक्सचर B।
So out of this 9 liter, some part of A and some part of B, or according to ratio, 7 out of 12 is A and 5 out of 12 is B. और चूंकि कंप्लीटली 9 लीटर बी मिक्स किया गया है, सो बी के पार्ट में आपने 9 ऐड कर दिया. सो ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड नाउ योर रेशियो इज इक्वल टू 7:9. फाइनली इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंप्लीटली सॉल्व करके आपको ए और बी दोनों का वैल्यू इजीली मिलता है, बट इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा. अदरवाइज इन शॉर्ट अप्रोच देखिएगा, ए एंड बी are initially in ratio 7:5 and finally 7:9. अब देखिए A तो कांस्टेंट है, चेंजेस केवल B में आ रहे हैं, 4 रेशियो के चेंज आ रहा है. And due to 9 liter, it means 4 ratio is equal to 9 liter. So 1 ratio is equal to what? 9/4. And finally 9 plus 7, it means 16 ratio का वैल्यू हुआ 9/4 into 16, which is equal to 36 liter. So ये 36 लीटर ये कंप्लीट मिक्सचर की वैल्यू आ गई. एंड आउट ऑफ दिस 36, इनिशियली ए is in the ratio 7 out of 12. So 12 threes are and 7 threes are 21 liter. So ये आपका शॉर्टकट अप्रोच हो गया. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Panjit, Saloni, got it? Yes, sir. Yes, sir. Anyone having any doubt in the complete session? Or clear everyone? एक क्वेश्चन और है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें. ये आपका असाइनमेंट है. It's done. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, guys. So this is the end of this class. Thank you, everyone. Good day.